जलियांवाला बाग हजारों निर्दोष लोगों की मौत का गवाह बना। एक नजर में यह घटना भले ही अंग्रेजों की क्रूरता का परिचय देती है, लेकिन अगर इस घटना को जरा गौर से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि असल में यह घटना ब्रिटिश सरकार की धोखेबाजी का भी सबूत है। इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा और पीछे चलना होगा। जर्मनी के बेल्जियम पर अटैक करने की वजह से ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश सरकार को भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आना पड़ा। 1915 आ चुका था और भारत में महात्मा गांधी की वापसी हो चुकी थी। साउथ अफ्रीका में रंगभेद को लेकर उनके द्वारा किए गए आंदोलन के चलते गांधी जी की गिनती दुनिया के प्रभावशाली नेताओं में होने लगी थी। गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी जी इंग्लैंड से भारत आए और अब उन्होंने भारत के लिए आजादी की लड़ाई लड़ने का निर्णय कर लिया था। उधर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी समेत विरोधी देशों से लड़ते लड़ते ब्रिटिश आर्मी की हालत खराब हो चुकी थी। ब्रिटिश सरकार के पास हथियार तो थे, लेकिन उन हथियारों को लेकर मैदान में बहादुरी से लड़ने वाले सैनिकों की कमी थी। इस कंडीशन में उन्हें हिंदुस्तानियों की याद आई। हिंदुस्तानी सैनिकों को अपने साथ शामिल करने के लिए उनके पास एक ही तरीका था और वो था गांधी को मनाना। Hello, Mr. Gandhi. Welcome to India. We all consider you one of the most powerful leaders in India. It's my pleasure to have you in this very important meeting. Thank you for your kind words, Lord Harding. But I am just a normal Indian who wants his people to be happy. And I am also very thankful to you for inviting me here. Thank you, Mr. Gandhi. Meet General James, who is the Commander-in-Chief of the British Indian Army. He wants to discuss something with you. Hello, General. Hello, Mr. Gandhi. As you know, the world is in crisis right now. We're fighting the World War. It has been a year since we have been fighting with opposite countries. Yes, I am aware of this. This should be stopped immediately. Yeah, that's what we all are wishing for. But you know, it's a very difficult time for our British Indian Army. War is always difficult for any nation. Mr. Gandhi, to face this difficulty and to come out of this situation, we need your help. We want to fight Indian soldiers for us. I know they're brave, and with the help of them, we can save our nation from this disaster. जनरल के इस फरमान को सुनते ही गांधी जी थोड़ी आवाक नजरों से उसकी ओर देखने लगे। तभी जनरल अपनी बात को संभालते हुए आगे बोल उठा। Mr. Gandhi, Indian people always respect you and they have a great trust in you. You're the one who can make them agree to fight for us. And do not worry, we're not asking for it for free. We can offer you anything. लॉर्ड हार्डिंग ने गांधी जी की तरफ बड़े ध्यान से देखते हुए कहा। गांधी जी कुछ देर तक शांत होकर बड़े ध्यान से कुछ सोचते रहे और आखिरकार वो बोल उठे। I understand your concern. And it is a really difficult time for us. I will do my best to support your country in World War. But we need a little confirmation from the British government and from you, Mr. Viceroy. Oh yes, please tell me, how can I help you? We want equality. Indian soldiers should get recognition as equals with British soldiers. We also want the release of political prisoners who is in your jail. And also we want the political rights for Indians. In short, if you want to treat us unite, then you should also give us rights. Okay, Mr. Gandhi. I understand your concern for your people, and I also promise you, after this war, I will try to make things better between Indians and the British government. उस वक्त भारत के वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग और ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ जनरल सर जेम्स विलकॉक ने गांधी जी के सामने ये प्रस्ताव रखा कि वर्ल्ड वॉर में भारतीय लोग ब्रिटिश आर्मी का साथ दें और उनके साथ युद्ध लड़ें। इसके बदले में गांधी जी ने भी उनके आगे भारत के हित की बात रखी। उन्होंने अपने देश के सैनिकों के लिए ब्रिटिश आर्मी के सैनिकों के बराबर हक की मांग की और इसके साथ ही भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकार की भी मांग कर डाली। उस वक्त ब्रिटिश सरकार वर्ल्ड वॉर से बुरी तरह जूझ रही थी। बिना भारतीय सेना के उनके लिए वर्ल्ड वॉर लड़ना मुमकिन नहीं था। गांधी जी ने भी वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ देने का वादा कर दिया था।
हालांकि उस वक्त स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे भारतीय क्रांतिकारियों में ब्रिटिश सरकार की नीयत को लेकर संशय भी था। मुझे इन गोरों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। ये सिर्फ हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं। पहले भी इन्होंने हमारा इस्तेमाल किया है और आज भी। इनके धोखे में हमारे निर्दोष लोग सिर्फ मारे जाएंगे। गांधी जी, लाजपत ठीक कह रहा है। हमें अंग्रेजों का साथ देने की कोई जरूरत नहीं है। इनकी वजह से हमने अपने बहुत से निर्दोष लोगों को खोया है और अब हम इनकी मदद करने जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये हमारे लिए स्वर्णिम समय है। इस वक्त हमें अपनी क्रांति को मजबूत करते हुए अंग्रेज सरकार के विरोध में खड़े हो जाना चाहिए। इनसे अपनी आजादी लेने का सबसे सही समय है। मैं तुम दोनों को चिंता समझता हूँ, लाजपत और गंगाधर, लेकिन हम अगर अपनी आजादी को अंग्रेज सरकार के विरुद्ध हिंसा करते हुए या धोखे से हासिल करते हैं तो ऐसी आजादी हमारे लिए ठीक नहीं होगी। और अगर हमें राजनीतिक अधिकार मिल गए तो फिर हम भी अंग्रेज सरकार के सामने अपनी मांग रख सकेंगे और उन्हें हमारी मांग को मानना ही पड़ेगा। लेकिन गांधी जी, गांधी ठीक कह रहे हैं लाजपत। और अगर हमें अंग्रेज सरकार से यह आश्वासन मिला है कि वो हमें राजनीतिक अधिकार देंगे और हमारे जवानों को भी ब्रिटिश आर्मी की तरह सम्मान मिलेगा तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन वो ऐसा करेंगे तब ना। मुझे इन गोरों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ठीक है, हमें इन पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं। इस दौरान हम अपनी आजादी की लड़ाई जारी रखेंगे। और वैसे भी अंग्रेज सरकार अभी अपना ध्यान विश्व युद्ध पर लगाकर रखेगी। इस बीच तुम अपनी आजादी की लड़ाई को और मजबूत कर सकते हो। गोखले की इस बात पर लाला लाजपत राय और गंगाधर तिलक ने भी सहमति जता दी। उन्हें अब यह उम्मीद थी कि विश्व युद्ध में अंग्रेज सेना का साथ देने के बाद भारत के लिए अपनी आजादी हासिल करना और आसान हो जाएगा। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार पर भरोसा करके भारतीय सेना को वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए कहना शुरू कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जगह जगह पोस्टर्स लगवाए गए और भारतीय लोगों को वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ देने के लिए कई लुभावने ऑफर दिए गए। गांधी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र जैसे हिस्सों से लगभग 15 लाख भारतीयों ने युद्ध के लिए स्वेच्छा से भाग लिया। इन्हें पानी के बड़े जहाजों से ब्रिटेन ले जाया गया और वहां उन्हें जर्मनी के विरुद्ध युद्ध करने के लिए मैदान में उतार दिया गया। भारतीयों को लड़ने के लिए और मजदूरी करने के लिए यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में भेजा गया। इसके साथ ही यहां के राजाओं ने काफी मात्रा में अनाज, पैसा और जो कुछ भी हो सकता था सब कुछ अंग्रेजों की मदद के लिए किया। हालांकि उस समय इन हिंदुस्तानियों को विदेश में रंग भेद का भी सामना करना पड़ा था। खैर, ये सब कुछ झेलते हुए उन लोगों ने बहादुरी से युद्ध लड़ा और ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ये सब उन्होंने इस आस में किया था कि इसके बदले ब्रिटिश गवर्नमेंट हिंदुस्तान में रह रहे उनके लोगों को आजादी दे देगी। आजादी ना सही तो कम से कम उन्हें अपने घर में सम्मान से रहने की मोहलत तो जरूर ही मिलेगी। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने हिंदुस्तान के सैनिकों के बलिदान का तोहफा हिंदुस्तान में राउलेट एक्ट यानी कि काला कानून लगा कर दिया। राउलेट एक्ट को काला कानून इसलिए कहा गया क्योंकि इसके तहत अब अंग्रेज सरकार किसी भी हिंदुस्तानी को बिना किसी जुर्म के और बिना किसी FIR के और बिना कोई कारण बताए गिरफ्तार करके 2 साल तक के लिए जेल में डाल सकती थी। और इसके साथ ही जेल में डाले जाने के बाद पुलिस उनके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकती थी, जो कि एक तरह से हिंदुस्तानियों पर जुर्म का सीधा सीधा ऐलान था। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीयों में इस काले कानून को लेकर रोष पनपना शुरू हो गया। जगह जगह पर राउलेट एक्ट को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सबसे अधिक विरोध पंजाब प्रांत में शुरू हुआ, क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़ने वाले सैनिकों में सबसे ज्यादा पंजाब के लोग ही थे।
पंजाब में जगह जगह राउलट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन होना शुरू हो गया था और इसका परिणाम कितना भयानक होने वाला था, इसका अंदाजा उस वक्त शायद किसी को भी नहीं था।